Okay, this is a demonstration in front of Bagh Press Club to highlight and obtain the release of Raja Munir, a prominent human rights activist of this city, who was picked up by Pakistan's intelligence agencies on the 12th of this month, November, in full view of people, and it is not clear where he's being kept, although Margala police station in Islamabad is cited as the place where he is being detained. And the ostensible or apparent reason for his kidnapping is that his son kidnapped or killed a certain police inspector in Islamabad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جموں کشمیر ہیومن رائٹس موومنٹ ضلع باغ کے زیر اہتمام آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ جموں کشمیر ہیومن رائٹس موومنٹ کے مرکزی صدر اور پریس کا بہاڑی دل کے سابق صدر راجہ منیر احمد خان کی گرفتاری کے خلاف جو ہمارا احتجاج کے طور پہ ہوا ہے، اس میں ہم تمام جو لوگ ہیں ان کو یہاں شرکت پر جو ہے وہ دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں مختصراً ہمارا پروگرام ہوگا، اس پروگرام کے حوالے سے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب وکیل صاحب کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آج کا جموں کشمیر ہیومن رائٹس موومنٹ ضلع باغ کا یہ پرامن احتجاج ہمارے مرکزی صدر راجہ منیر احمد خان کی آج سے ایک ہفتہ قبل گرفتاری کے خلاف احتجاج ہے. اس میں ہماری تنظیم کا موقف یہ ہے کہ ان کو فی الفور جو ہے وہ رہا کیا جائے. اس حوالے سے میں دعوت دے رہا ہوں تنظیم کے مرکزی آرگنائزر جناب پرویز مغل صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پرویز مغل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر وقت میں چونکہ باقی ہمارے ہیومن رائٹس کے تمام مقررین نے بات کرنی ہے، جس وقت راجہ منیر صاحب کو یہاں سے ایجنسیاں اور اسلام آباد پولیس نے اٹھایا، اس وقت میں راجہ منیر صاحب کے ہمراہ انتاب سندھی پہ ایک لیکچر تیار کرنے کے لیے وہ وہاں ہوٹل پہ تشریف فرما تھے. تو اسی عرصہ میں انہیں فون آیا اور ہم دونوں نیچے آئے، جس میں باغ انتظامیہ کے ایک کانسٹیبل بھی ان کے ساتھ تھے. تو میں نے انہیں کہا جی کہ آپ کس بات کے لیے ان کو لے جا رہے ہیں یہاں سے، تو آپ مجھے بتائیں چونکہ آپ باغ کے ہیں، پولیس کے ان کے ساتھ ہیں، تو کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا جی مجھے کوئی پتہ نہیں. میں نے کہا جی آپ بتائیں کہ آپ یہاں ان کے ساتھ ڈیوٹی پہ آئے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ اوپر کسی کو پتہ ہوگا، مجھے کوئی پتہ نہیں. تو جس طرح راجہ منیر صاحب کو گاڑی پہ بٹھایا گیا، اتنی تنگ جگہ تھی، اتنی بے رحمی کے ساتھ وہاں انہیں بٹھایا گیا، وہ بالکل اس طرح گھسے ہوئے تھے جہاں ایک سائڈ پہ. تو بڑے افسوس سے میں نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے فون پہ رابطہ کیا. راجہ منیر صاحب چونکہ انتہائی بہادر اور انسانی حقوق پہ کام کرنے والے بڑے عظیم آدمی تھے، انہیں اس کیے کی سزا مل رہی تھی کہ وہ مظلوم کی آواز بلند کر رہے تھے. میرے دوستوں ساتھیوں، اگر راجہ منیر صاحب کو رہا نہ کیا گیا تو سب راجہ منیر ہوں گے. ہم سب اس لیے تیار ہیں، ہم ان کی جگہ ہم سب قربانی دینے کے لیے تیار ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ آزاد کشمیر کی انتظامیہ ہے، گورنمنٹ ہے اور بعد کا ایس پی ڈی سی ہے، وہ اس سے لا علمی اظہار کر رہے ہیں. مجھے اس چیز کی افسوس ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق کا ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر رہ رہے ہیں، کس کونے میں رہ رہے ہیں، کیا ہمارے بنیادی حقوق ہیں. اگر حقوق پہ بات کی جائے تو اسلام آباد آدمی 10 منٹ کے بعد پہنچ جاتا ہے.
बड़ा अफसोस से मैं अफसोस के साथ ये बात कहते हुए मुझे शर्म आती है कि हम किस जगह पे रह रहे हैं और इस इंतज़ामिया और इस गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। अगर राजा मुनीर साहब एक हफ्ते के अंदर रहा नहीं हुए तो हम इंशाअल्लाह ज़रूर राजा मुनीर बनेंगे और जेल पर तहरीक शुरू करेंगे। वमा अलाना इल्लल्लाहुल मुबीन। बड़ी तलाश की थी। देखिए परवेज़ मुग़ल साहब, अब मैं जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के साथ जो है वो सॉलिडरिटी के लिए यूकेपीएन के मर्कज़ी सेक्रेटरी जनरल सैयद ताहिर शाह गर्दी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और इस हवाले से अपनी बात रखें। ताहिर शाह गर्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा मुनीर साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आज यहाँ आपको लोग जमा हुए हैं। मैं आप सब की ज़रूरत और हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ और मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी राजा मुनीर की गैर कानूनी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ शदीद एहतियात करती है और हम ये पूछना चाहते हैं आलमी बरादरी से, हुकूक़ इंसानी की तंजीमों से और यहाँ के जो रियासती अदारे हैं उनसे कि आखिर राजा मुनीर का जुर्म क्या था, उसे किस जुर्म की पादाश में गिरफ़्तार किया गया और अगर राजा मुनीर का कोई जुर्म था तो यहाँ रियासत के अंदर कानूनी अदारे मौजूद हैं, नाम नहाद कानूनी अदारे ही सही, लेकिन यहाँ एक सेटअप मौजूद है, उसके तहत उसके ख़िलाफ़ ट्रायल किया जाता, यहाँ के लोगों को बताया जाता कि राजा मुनीर ने क्या जुर्म किया है। तो अगर किसी और के जुर्म की सज़ा राजा मुनीर को दी जा रही है तो मैं समझता हूँ कि ये बदतरीन जुल्म है, ज़्यादती है और हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। राजा मुनीर ने तवील अरसा से गुज़श्ता 12-15 साल से वो इस आज़ाद कश्मीर, नाम नहाद आज़ाद कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़, वर्जियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और मैं समझता हूँ कि यही उनका जुर्म है जिसकी पादाश में उन्हें एक भोंडे तरीके से एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान वहाँ से अगवा करके नामालूम मकाम पर पहुँचा दिया है। हम अदारों को मुतनबे करते हैं कि वो पूरी तौर पर राजा मुनीर को गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दें। बसूरत दीगर पूरे आज़ाद कश्मीर में हम राजा मुनीर के हक़ में आवाज़ उठाएंगे और हम पुरतशद्दुद एहतिजाजी तहरीक चलाने से भी ग्रेज नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। आज का ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ज़िला बाग के ज़रिए तमाम है। इस प्रोग्राम की सदारत ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ज़िला बाग के सदर अब्दुल कयूम चौताई साहब कर रहे हैं। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब राना सरफराज साहब से कि वो आएँ और मुस्लिम लीग नून और आड़ी गल के हवाले से जो है वो नुमाइंदगी करेंगे। राना सरफराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम और इस वक्त गम और अंदू और से नडाल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के कारकुनों, कारिंदों और ज़िम्मेदारान, राजा मुनीर साहब के साथ हमारी 20 घंटे रोज़ाना मुलाकात प्रेस क्लब में होती है, जिसके बारे में परवेज़ मुग़ल साहब को अच्छी तरह इल्म है। और यहाँ जब आपका इस मूवमेंट का यहाँ एक ओथ टेकिंग हुई थी, उसमें भी कयूम साहब को भी पता है कि मैं यहाँ मौजूद था और हम सब मिल के इंसानी हकूक़ की बाजियाबी के लिए और ये इस तरह पकड़ दगड़ और आबरू रेजी इसके ख़िलाफ़ जो है ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। यही वो रोना है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हर रोज़ कह रहा है। उसने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को नहीं माफ़ किया और मुस्लिम लीग की इस हुकूमत को भी नहीं माफ़ किया। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि शायद बलोचिस्तान में और पीकेके में शायद हुकूमत को एहसास हो गया है कि वहाँ लोगों की ज़बान है और वो बात कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर एक ऐसी मिट्टी है जिस पर पिछले 400 साल से लोगों ने सिर्फ जुल्म ही डाले हैं।
हम राजा मनीर की इस गिरफ्तारी को, जो उसके किसी रिश्तेदार या बेटे के नाम पे हुई है, हम ये कहते हैं कि ये इंतहाई रियासत की दहशतगर्दी है। और अगर बेटा उनका किसी जुर्म में है, मुलव्वस है, तो भी किसी बेटे को, भाई को, या उसके बाप को, या उसकी माँ या बहन को उसकी सजा या उसकी बीवी को नहीं दी जा सकती है। और मैं इस मौके पे ये भी कहूँगा कि रावली सिक्योर डोका के मुकाम पर जो लड़का खुद एजेंसियों के हाथों मारा गया है, यह भी जुल्म हुआ है। जब एक लड़का ये कह रहा है, कन्फेस कर रहा है कि हमने फलानी जगह एक चीज छोड़ी हुई है, तो क्या जरूरी था कि उसको कहा जाता कि ये ग्रेनेड उठाओ और खुद भी मारो, और उसने एक और आदमी की जान भी तलफ की है। मैं कहता हूं कि उसके बाप को मैं जब मिला तो मुझे एहसास हुआ कि शायद उसके लिए आवाज बुलंद करने वाला भी कोई नहीं है। मैं ये कहता हूं, बेशक हमें भी, मेरी इस बात की बुनियाद पर मुझे भी किसी सेल में डाल दिया जाए, लेकिन हम इस तरह कश्मीर के लोगों की आबरू रेज़ी नहीं होने देंगे। और हम यहाँ मीडिया के जरिए, मीडिया के तवज्जुह से ये बात कहना चाहते हैं कि यहाँ नई खेल ना शुरू करो। ये बहुत बड़ा एहसास अदारा है, यहाँ दुश्मन भी देख रहे हैं और वो बिल दाग में है, वो बिल घात में लगा के बैठा हुआ है। और इस तरह ये ना करें। और ये इस तरह जो गुमनाम जो गिरफ्तारियां हैं, कहाँ है राजा मनीर, किधर है, उसका क्या जुर्म है, उसको अदालत की कटहरे में लाया जाए, और उसके खिलाफ कोई जुर्म है तो उसको मंजर पर लाया जाए, और इस तरह पकड़ दगड़ से बात आ जाए, वरना यहाँ बहुत गड़बड़ होगी और पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। और इसका नतीजा जो है वो समझना चाहिए हुकूमत को और एजेंसी को। और एजेंसियां किसी कानून के मदद हैं, एजेंसियों को खुदा की ऊपर से तरह आई नहीं है, अल्लाह का भी एक कानून है कि जो जुर्म करता है उसको सजा देता है, और उसके लिए उसको मोहलत भी मिलती है। और उसको बार बार उसके अंबिया आते हैं और रसूल आते हैं और उनके लिए हिदायत की किताबें आती हैं। उसके बाद अगर इंसान नहीं सीधा होता तो फिर जाके उसके लिए आखिरी जगह है जो क़यामत के दिन होगी, उसको सजा और जजा मिलेगी। लेकिन ये क्या बात हुई कि एजेंसियां, और हम यहाँ खौफजदा हो जाएं कि एजेंसियां हमें उठा लेंगी। भले से एजेंसियां उठाती हैं तो उठा लें, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे शहरियों के साथ इस तरह का सलूक ना किया जाए। और मनीर को और उसके साथ जितने भी लोग हैं इस तरह के जो गुमनाम तरीके से गुम करके कहीं जेलों में और कहीं सेल में डाले जाए, उनको जो है वागजार किया जाए। मैं इसी पे आप सब लोगों का, ह्यूमन राइट्स का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। राह करो, राह करो, राजा मीर को राह करो, राह करो, राजा मीर को राह करो। अब मैं नेशनल अवामी पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए जनाब नासिर आकाश साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और मुख्तसरन जो है वो तालिब जारी के तौर पर लफ्ज़। इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, उस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में पड़ी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। अरे नायती ह्यूमन राइट्स मूवमेंट और जितने भी यहाँ पे अहलियान बाग तशरीफ़ लाए, मैं उन सब का मशकूर हूँ कि आज के मुजाहरे की गर्दोगायत राजा मनीर साहब जो कि ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट हैं, साफ़ी भी हैं, और उनको यहाँ के गैर रियासती अदारों ने इसके बेजा में रखा हुआ है। हम इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करते हैं। हमने उस दिन भी जो मुजाहरा किया था कि यहाँ जो हमारा पुरअमन खिता है, जो यहाँ हम अमन चाहते हैं और हम पुरअमन रहने चाहते हैं, लेकिन कुछ गैर मुल्की गैर रियासती एजेंसियाँ हमारे इस पुरअमन फ़ज़ा को ख़राब करने के लिए यहाँ पे उन्होंने साजिशें कर रही हैं। और उसी साजिश का नतीजा यहाँ जो गुज़श्ता दिनों रावली के अंदर जो वाक़ा हुआ है, हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं कि यहाँ जो गैर रियासती अदारे हैं वो बगैर सोचे समझे रात की तारीकी में आके ऑपरेशन करते हैं। और हमारा जो खित्ता है इसकी रवायात कुछ और हैं। अगर उनको किसी बंदे पे कोई इल्ज़ाम भी है, कोई मुलव्वस भी है, तो उसका तरीक़ाकार यहाँ की जो स्टेट के लोग हैं, जहाँ जो स्टेट के पुलिस ऑफिसर हैं, यहाँ जो रियासती अदारे हैं, उनको इत्तला देकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और उन्होंने उनको अंधेरे में रख के जो कार्रवाई की और उसका नुकसान भी हुआ। और हम ये समझते हैं कि राजा मनीर का जुर्म नहीं है। अगर उसका बेटा किसी जगह मुलव्वस है तो अदालत मौजूद है, उस पे अदालत के अंदर उसको पेश किया जाए और भेजा उसको हिफ्ज़े बेजा में रखना, उसको उठा के यहाँ से गायब कर देना, अपने कस्टडी में रखना, ये इंसानियत की तौहीन है और ये बहुत बड़ा जुर्म है। और हम ये समझते हैं कि आज
آج اور یہ وارن کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح ہمارے ریاست کے شہریوں کو اٹھایا گیا، اس طرح ہمارے ریاست کے شہریوں پر تشدد کیا گیا، تو یہاں بھی حالات اس طرح ہوں گے جس طرح بلوچستان کے اندر ہیں، یہاں بھی حالات اس طرح ہوں گے جس طرح وزیرستان کے اندر ہیں۔ اور ہم یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم تشدد نہیں چاہتے، لیکن جب تم ہمیں تشدد پہ اٹھاؤ گے تو پھر یہاں کشمیری اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں۔ ہم اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن راجہ منیر کی جو گرفتاری ہے اس کے خلاف ہیومن رائٹس کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کرے گی۔ وہ جب بھی کال دیں گے ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ میں اسی پہ اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا رہا کرو، رہا کرو، راجہ منیر کو رہا رہا کرو، رہا کرو۔ اب میں مختصر وقت کے لیے یونائٹڈ کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر مرکزی چیئرمین جناب شام قاضی صاحب سے مدعو ہیں کہ وہ آئیں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ بار بار ڈال رہا ہے گلو گفتار پہ خاک، اس پر میرے اشعار پہ خاک، باقی اگر بات نہیں کہہ سکتا، باقی اگر بات بھی کہہ سکتا نہیں کوئی یہاں، تف پر اہل سخن فلت و دستار پہ خاک۔ مجھ سے پیش رو مقررین نے آج کے اس احتجاجی مظاہرے کی غرض و غایت آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن میں یہاں میڈیا کے توسط سے اور یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندگان بھی موجود ہیں، ان کی وساطت سے بات کو ذرا آگے بڑھانا چاہوں گا۔ بنیادی سوال کیا تھا تنویر صاحب آپ نے یہاں، میرا مخاطب آپ کے ذریعے انٹرنیشنل میڈیا ہے کہ جہاں انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے کہ کشمیر کے شہریوں کو انسانی حقوق حاصل ہیں یا نہیں، تو اس سے بڑی شرمناک بات کیا ہوگی کہ یہاں ہیومن رائٹس کے حوالے سے جدوجہد کرنے والوں کو اگر اٹھایا جائے گا تو ہم کون سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور ہم کون سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں جہاں ہمیں بنیادی ووٹ کا حق حاصل نہیں۔ یہاں کی اسمبلی کے اندر پاکستان کی ایجنسیز نے اور پاکستان کے آئین میں ایسی لغویات کو شامل کیا گیا ہے جس سے ہماری نمائندگی کے تسلسل کو تبدیل کیا جا سکے۔ پاکستانی حکومت اور پاکستانی ایجنسیز اس کو پروپورشنل کرنے تک کے لیے تیار نہیں کہ ان 12 نشستوں کے ذریعے وہ اپنے ان گماشتوں کو یہاں پہ بٹھا سکیں۔ اور راجہ منیر صاحب کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کا کوئی عزیز، ان کا کوئی رشتہ دار کسی کارروائی میں ملوث ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اگر راولی میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو 3 ماہ سے ایک بندہ آپ نے اٹھایا ہوا اور اس کو محرم کے حساس دنوں میں ہی لا کے آپ نے یہاں پہ اس کا ڈرامہ کر کے یہاں پہ خوف و راز کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کشمیر میں جہاں ہندو، مسلمان، بدھسٹ اور دیگر طبقات بھی امن و آشتی سے رہتے رہے، یہاں پہ شیعہ سنی ہماری ریاست کا مسئلہ نہیں، طالبانائزیشن اور دہشت گردی اور انتہا پسندی ہماری ریاست کا مسئلہ نہیں۔ یہ ہمارے اوپر اگر پاکستان اپنے مسائل کو ہمارے یہاں پہ تھوپنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کی مذمت بھی کریں گے، ہم اس کے خلاف بات بھی کریں گے۔ یہاں پہ فرقہ واریت کی فضا پیدا کرنے کی جو کوشش پاکستانی ایجنسیز کی طرف سے کی جا رہی ہے، ہم راولپنڈی کے ہونے والے سانحے کا ذمہ دار بھی پاکستانی ایجنسیز کو قرار دیتے ہیں، ہم راولی میں ہونے والے سانحہ کا ذمہ دار بھی پاکستانی ایجنسیز کو قرار دیتے ہیں۔ اور یہ ایک کوشش ہے ان ثبوتوں کو مٹانے کی کہ پہلے ایک طرف سے تو ان اپنے گماشتوں کو پیدا کیا جاتا ہے، انہیں ٹرین کیا جاتا ہے، اور پھر اسی کے تسلسل کے اندر آتے ہوئے ریاست میں انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو اپنی ان کارروائیوں کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ ایک ہفتے کی بات کی یہاں پہ ایک معزز دوست نے، ہم ایک ہفتے کی نہیں، ہم 24 گھنٹے کی کال دیتے ہیں پاکستان کے تمام ناجائز اداروں کو کہ راجہ منیر صاحب کو فوراً باعزت رہا کیا جائے، ان کے خلاف کسی عدالتی کارروائی کی بھی کوئی گنجائش نہیں بنتی، کیونکہ ان کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے وہ اس چیز کے لیے کافی ہیں کہ وہ نہ تو اپنے کسی عزیز کی کسی کارروائی کا حصہ ہیں، اگر ان کے عزیز کی کسی کارروائی کو کوئی حصہ ہے تو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں جن نے یہاں پہ ماحول کو خراب کرنے کے لیے، یہاں کی فضا کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو پہلے خود پروان چڑھایا۔ کون نہیں جانتا کہ دہشت گرد پاکستانی ایجنسیز کی پیداوار ہیں، کون نہیں جانتا۔ اختصار کے ساتھ میں اسی پہ اتفاق کروں گا، اور میں یہ ایک میسج ضرور دوں گا کہ 24 گھنٹے کے اندر اگر
رہا نہیں کیا جاتا راجہ منیر صاحب کو تو یونائٹڈ کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی اپنی قیادت کے بھرپور تعاون کے ساتھ اپنی ہیومن رائٹس کی برادری کے ساتھ بھی کھڑی ہے، اور کشمیریوں کے حقوق اور کشمیری ریاستی اداروں کے فعال ہونے تک اور کشمیر کے آزاد ہونے تک ایک ایسی جدوجہد کا آغاز کیا جائے گا جس کا سامنا شاید پاکستانی خفیہ ادارے اور پاکستان کا جو نام نہاد تسلط ہے یہ برداشت نہ کر سکے۔ آپ کا شکریہ۔ اظہار یکجہتی کے لیے جناب راجہ احمد منظور ایڈوکیٹ صاحب سے ملتمس ہوتے ہوئے آئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چپ رہنے سے چھن جاتا ہے انداز سخن، چپ رہنے سے چھن جاتا ہے انداز سخن، ظلم سہنے سے ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام ہیومن رائٹس مشن موومنٹ ضلع باغ کے سارے عہدیداران اور پریس ممبران، دیگر کمیونٹی کے سارے حضرات، آپ تمام لوگوں کو ایک آزاد اسٹیٹ کے آزاد شہری ہونے کے ناطے سے آج آپ نے یہ جو اپنی آواز بلند کر کی ہے اور یہ جو احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام تنظیم کے ساتھ سارے عہدیداران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جناب امجد گدیری صاحب ہمارے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے اس حوالے سے ہمیں انفارم کیا، تو میں انشاءاللہ ہیومن رائٹس کے ساتھ اپنے آپ کو والنٹیئرلی طور پہ کام کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں، اور یقیناً آپ کی آواز کے ساتھ ہاتھ ملا کے ہم رول آف لا کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کانسٹیٹیوشنلی ہم کسی ایک ادارے کے اور کسی ایک شخص کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً ہمیں ایک آزاد ریاست کے لیے، مضبوط آزاد ریاست اور آزاد پاکستان اور مضبوط پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، جہاں سارے لوگوں کو حقوق ملیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ راجہ منیر صاحب کے خلاف اگر کوئی ایلیگیشن ہے تو یہاں پہ ٹرائل کورٹس موجود ہیں، یہاں کے کانسٹیٹیوشن موجود ہے، یہاں کی پولیس ایجنسی موجود ہے، ان کو انویسٹیگیشن میں اگر کوئی ہے تو ایف آئی آر ہو، اور تھرو پروسیس ان کے خلاف اگر کوئی ایلیگیشن ہے تو ہمارے سامنے لایا جائے۔ یہ جس طرح کا ایک انلیگل طریقے سے ان کو اٹھایا گیا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ راجہ منیر صاحب کو جو لوگوں کے جو ہے وہ رائٹس کے رکھوالے ہیں، جو لوگوں کو رائٹس کے لیے کام کر رہے تھے، انہی کو آپ نے اٹھا لیا ہے، تو ان عام لوگوں کو کیا تاثر ملے گا؟ انٹرنیشنلی طور پہ آپ کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یقیناً راجہ منیر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر ان کا قصور ہے بھی تو لیگلی طور پہ جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے اور اس کو سامنے لایا جائے، اور فوری طور پہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ اس کے علاوہ دیگر جو بھی جو ہے یہاں ایک ہمارے علاقے میں جو وقوع ہوا ہے اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ جو بھی جملہ جو ایجنسیز ہیں یہ ان کا فیلئر ہے، ان کو جو ان کے ذمہ داران ہیں، جو انلیگل طریقے سے جو مس کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا گیا پروفیشنلی طور پر، ان کو جو ہے وہ کیفرے کے دار پہنچایا جائے۔ پاکستان کے اندر جو ریسنٹلی وقوع ہوا ہے یہ ایجنڈے سے تو تھوڑا سا باہر ہے، لیکن ہم چونکہ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہم اس کے لیے بھی یہ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اس اسٹیج کی وساطت سے کہ جو بھی ذمہ داران ہیں اس کے وقوع کے، ان کے خلاف سخت سے سخت قانون قرار واقعی ان کو سزا دی جائے۔ اور آخر میں پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ہیومن رائٹس کے ساتھ مکمل یکجہتی کرتے ہیں، اور دیگر وکلا ساتھی بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی اس تحریک میں شامل ہوں گے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر راجہ منیر صاحب کو رہا کیا جائے۔ وآخر دعوانا رہا کرو راجہ منیر کو رہا کرو۔ اب میں جموں کشمیر ہیومن رائٹس موومنٹ کے مرکزی چیف آرگنائزر جناب شاہد رشید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والا وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ راجہ منیر کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا عرصہ گزرا ہے، اس نے جب بھی بات کی ہے تو امن کی بات کی ہے، جب بھی لکھا ہے تو امن کے لیے لکھا ہے۔ تو یہ دراصل راجہ منیر کی گرفتاری جو ہے قابل مذمت ہے، اور راجہ منیر کو گرفتاری جو ہے بے انسانی حقوق اور مظلوم لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں متعلقہ اداروں سے کہ فوری طور پہ راجہ منیر کو رہا کریں، اور نہیں تو آزاد کشمیر بھر میں
तक हम ये दायरा कार इसका एहतजाज का बढ़ाएंगे। तो मैं इसी पे इजाज़त चाहूँगा, बाकी साथियों से कोई बात करनी है। अब मैं, क्योंकि राजा मुनीर साहब जो है वो अगर एक तरफ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के जो है वो एक्टिविस्ट थे, मरकज़ी सदर थे, तो दूसरी तरफ वो प्रेस क्लब आड़ी गल के साबिक सदर भी थे और हमारे इसी जो है वो समाज का एक हिस्सा हैं। तो मैं साफ़ी बरदरी की नुमाइंदगी करने के लिए प्रेस क्लब बाग के साबिक सदर जनाब जाहिद गिलानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वह सबसे पहले तो आप सब दोस्तों, इनमें इंसानी हकूक़ की तंजीमें और उसके बाद कौम परस्त तंजीमों ने इसमें शिरकत की, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, क्योंकि राजा मुनीर सिर्फ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के सदर नहीं थे बल्कि प्रेस क्लब एडिगल के सदर भी थे और फिर हमारी साफ़ी बरादरी से भी उनका ताल्लुक़ था। यकीनन राजा मुनीर साहब ह्यूमन राइट्स के लिए तो काम करते रहे, लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये है कि जब वो अरेस्ट हुए तो उसके बाद आप जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें जिसके वो चेयरमैन या सदर थे, उनको भी इसमें अपना फ़ौरन किरदार अदा करना चाहिए था। बहरहाल कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। यकीनन राजा मुनीर साहब को जिस तरह उठाया गया और फिर बेटे की जगह बाप के साथ जो सलूक हुआ और यहाँ से उठा के उसको इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, काबिल मज़म्मत इक़दाम है। मैं समझता हूँ कि 20 को महल में इनकी अदालत में जो है वो पेशी भी है। तो मैं अदालत आलिया से मुतालबा करता हूँ, चाहे वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं या सुप्रीम कोर्ट है, कि वो इनको जो है फ़ौरन रहा करने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ, इसलिए कि राजा मुनीर इंसानी हकूक़ के लिए हमेशा काम करता रहा और फिर अगर बेटे का कोई कसूर है तो उसकी सज़ा जो है वो बाप को नहीं मिलनी चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि शायद उनका बेटा किसी उसमें इक़दाम में मुलव्वस हुआ होगा, लेकिन ज़्यादती का अफसोसनाक बात यह है कि राजा मुनीर जो है वो एक साफ़ी भी थे, ह्यूमन राइट्स के सदर भी हैं और फिर एक शरीफ शहरी भी थे, और उनके साथ इस तरह के इक़दाम जो है काबिल मज़म्मत हैं। वो आमना क्या नाम है उसका, जंजुआ, उनके शोहर समेत जितने लापता अफराद थे उनके लिए भी एक तहरीक का हिस्सा बने रहे वो, और शायद उसी की सज़ा इनको मिल रही है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि राजा मुनीर जो है उनको फ़ौरन फिलफौर रहा किया जाए, करवाया जाए, और जिन अदारों ने उनको अरेस्ट किया हुआ है वो बगैर किसी इल्ज़ाम के इनको बरी ज़िम्मा करें, ताकि जो है वो एक दोबारा फिर आके यहाँ पे अपना साफ़ती और फिर इंसानी हकूक़ के वाले जो इक़दाम वो काम करते हैं उसके लिए वो करते हैं। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का आज का ये एहतजाजी मुजाहिरा, इसके मरकज़ी सदर राजा मुनीर अहमद की बिलाजवाब जो है वो गिरफ्तारी और एक ऐसा जुर्म कि जो बेटे ने किया उसकी सज़ा जो है वो बाप को, ये काम इंसाफ है। इसी हवाले से अभी जो है वो हमारे आखिरी जो है वो मुकर्रर आज की जो जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ज़िला बाग के सदर जनाब अब्दुल कयूम चूताई साहब ने बात करनी है, उससे पहले क्योंकि हमारे दरमियान सिर्फ एक खातून जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ज़िला बाग की ख़वातीन विंग की सदर, उनसे गुजारिश है कि वो सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। सलमा हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के अहदेदारान, साफ़ी हजरात, कौम प्रेस तंजीमों के नुमाइंदगान, मैं आज आप सबके सामने राजा मुनीर जो कि जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के मरकज़ी सदर हैं, उनको उठाए जाने पर इस कार्रवाई पर शदीद मज़म्मत करती हूँ कि एक ऐसे बंदे को उठाना जो कि दूसरों के हुकूक़ के लिए जंग लड़ रहा है, दूसरों के हुकूक़ के लिए दिन रात जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, उस बंदे को उठाना, उसके राइट को वायलेट करना, ये कहाँ का इंसाफ है। और अगर मुनीर साहब का कोई जुर्म होता तो तब भी कोई बात होती, लेकिन उनका जुर्म न होने पर भी और उनके बेटे की जो किसी भी तरह से किसी जुर्म में मुलव्वस था या नहीं था, अगर था भी तो उसकी सज़ा उसी बेटे को होनी चाहिए थी, राजा मुनीर को नहीं होनी चाहिए थी। मैं आज की इस मुजाहरे की साथत से इसकी जो है पुरजोर मज़म्मत करती हूँ और ये मुतालबा करती हूँ कि राजा मुनीर साहब को फौरी तौर पर रहा किया जाए। अगर उनको फौरी तौर पर रहा न किया गया तो हम जो है वो किसी किस्म के एहतजाज से ग्रेज नहीं करेंगे। हम जो है तो उसके लिए पूरे आज़ाद कश्मीर में मुजाहरे करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, जहाँ तक मुमकिन हुआ हम लोग करेंगे। और मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के साथ जो है भरपूर तामन किया।
इसी पे अब मैं आज के इस प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रर और इस जो है वो एहतियाजी मुजाहरे की प्रोग्राम की जो है वो सदारत करने वाले सदर और जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जिला बाग के सदर जनाब कमीशन को आए और अपने साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के अहदेदारान और कारकुनान सबका नाम लेना मुश्किल है। आपका तो शुक्रिया अदा वैसे भी नहीं करता क्योंकि ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ था। तो मैं अपने कूम प्रेस जो हमारे साथी हैं जिन्होंने आज हमारे साथ शामिल हुए, हमारे साथ भरपूर तावन किया, हक़ और सच की बात की, मैं सबसे पहले मैं कहता हूँ कि एक एक करके सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के इस एहतियाजी मुज़ाहरे का जो ज़्यादा इंतज़ाम जो किया, रब्ता किया, वो अमजद गद्दारी साहब का, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साफ़ी हमारे सेंसर से आए हुए हैं, ये कवरेज कर रहे हैं हमारे, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तरह हमारे शायद शीर साहब जो है मंजूर साहब रावलकोट से आए हुए, अपना जनरल रावलकोट से आए हुए मरकज़दार, उनका भी और सब अपने साफ़ी भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हुए मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। मुझे अफसोस ये है कि हमारा सदर जो इंसानी हुकूक की बात करता है, जो लोगों के फलाह बहबूद की बात करता है, लोगों की राइट्स की बात करता है, और सबसे बड़ा जुर्म जो मैं समझता हूँ उसका जो था वो मिसिंग पर्सन के हवाले से जो उसने काम किया और राजा मनीर की कोशिशों से, आपको शायद ये पता हो या ना हो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पूरे 3 आदमी जो है वो बाजियाब हुए। और इस वक्त भी जो राजा मनीर जो था वो हमारा आमना मकसूद जो डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन है, वो उनके कोऑर्डिनेटर भी थे, हमारा एक लिंक्स था, उस पर काम कर रहे थे मिसिंग पर्सन के हवाले से। तो राजा मनीर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सामने कश्मीरियों की नुमाइंदगी की, मिसिंग पर्सन के हवाले से हमारे लोगों की नुमाइंदगी की, जिसकी सज़ा जो है वो आज राजा मनीर को बेटे की सूरत में दी जा रही है। मुझे ये बात बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? बेटा उसका नाफरमान था, किसी कलदन तंजीम से ताल्लुक रखता था, उसने आज से 7 या 8 साल पहले उसने आ किया हुआ था। मुझे समझ नहीं आती इस रियासत के कानून की, क्या वो उसको गोली मार देता? अगर उसको मार देता फिर भी राजा अपना मनीर फंसता। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारे साथ क्या घिनौना किरदार अदा किया जा रहा है। मैं अपने 2-3 साथियों की इस बात की तायद करते हुए कि जो एजेंसियां, मैं ये समझता हूँ कि ये कश्मीर का जो खिता ये किसी ने पाकिस्तान यूनियन ने आज़ाद करवाया। कबायली लोग हमारे उस तारीख में हमारे साथ शामिल थे। कश्मीरियों ने लाठियों और कुल्हाड़ियों से ये खिता आज़ाद करवाया, आज़ाद करके तो ये पाकिस्तान के हवाले किया। हम हालात का नारा हमारे कुछ हुक्मरानों ने अपनी ज़ाती मफादात की खातिर मैं वो लगाया। मैं ये समझता हूँ क्या यही कश्मीरी के साथ ये सलूक किया जा रहा है? क्या हम भेड़ बकरियाँ कि जिस तक चाहे कोई हमें गिरफ्तार करके ले जाए? मैं ये समझता हूँ कि डोको रावली का जो वाक़ा हुआ वो उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। क्या वो एजेंसियाँ पाकिस्तान हमारी इंतजामिया के साथ ताउन के साथ वो उसको गिरफ्तार नहीं किया, अपना वो वहाँ पे बरामद नहीं करवा सकती थी? लेकिन उन्होंने अपनी हमारी कश्मीर को कुछ समझा नहीं और उस एजेंसी ने घिनौना किरदार अदा करके लोग रावला के अंदर वो धमाका किया। अगर वो बंदा जिंदा बच जाता तो मैं समझता हूँ कहीं ऐसे जान पेशा लोग सामने आ जाते। मैं समझता हूँ कि ये एजेंसी ने घिनौना किरदार अदा किया, उस बंदे को वहाँ पे हलाक किया। मैं समझता हूँ कि उसके वालिद को उन एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए क्योंकि उसका भी जम्मू रियासत के अंदर उसका हक बनता है। फिर मैं समझता हूँ कि साना है, मैं दूर नहीं जाता लेकिन थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि जो रावलपिंडी के अंदर जो वाक़ा हुआ ये किसका हुआ? पुलिस और इंतजामिया वहाँ पे क्या कर रही थी? तो वहाँ पे लोगों को ज़ब्ह किया गया, उसकी एफआईआर भी पाकिस्तानी इंतजामिया के खिलाफ होनी चाहिए क्योंकि उनकी मौजूदगी के अंदर ये हुआ। मैं समझता हूँ कि हम कश्मीरी हैं, हमारे साथ वो सलूक किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जैसे इंडिया के अंदर नहीं किया जा रहा है। मैं अपने हुक्मरानों से ये कहता हूँ कि तुम किस बुनियाद पर सियासत करते हो? हमारे हुक्मरान तो आईजी और चीफ सेक्रेटरी हैं, जो बात जो होती है वो नोटिस देते हैं और हमारा नाम नाथ हुक्मरान जो है वो ये करते हैं। और हमारा एसपी बयान देता है जी के राजा मनीर एक इंस्पेक्टर के अगवा में मुलव्वस है। मैं कहता हूँ रियाज अब्बासी साहब 20 दफा हम लोगों के मामला लेकर आपके पास थे। मैं कहता हूँ अगर राजा मनीर के खिलाफ अगर कोई उस अगवा का कोई एक कदम भी साबित हो जाता है, मैं समझता हूँ कि एजेंसी बहुत कुछ कर जाती है, वो बंदूक को खुद मारवा के गायब करवा के तो बंदे को फंसाती है। तो मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि राजा मनीर किसी घिनौने किरदार के अंदर ना इसका कोई इससे पहले किरदार था, वो एक शरीफ और नज़र अजीब आदमी है। तो मैं समझता हूँ कि मैं आज़ाद कश्मीर के बाशऊर लोगों से, बाशऊर तबका से और पढ़े लिखे लोगों से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने हक के लिए अगर हम नहीं जागेंगे, नहीं उठेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए ये न जो हम ये हुक्मरान में इंसाफ देंगे और न पाकिस्तान जो है। मैं समझता कि ये हमारे ये सियासत के साफी ने कहा था कि ये राइट हमें हासिल है या नहीं हासिल है, कागजी कानून तो कागजी कार्रवाई तो सब हमें हासिल है, लेकिन अमली तौर पर पाकिस्तान के अंदर
जो एजेंसियां हमारे साथ जो किरदार अदा कर रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये नफरत की एक फ़ज़ा जो पैदा कर रही हैं, ये कश्मीरियों और पाकिस्तान के दरमियान नफरत की एक फ़ज़ा जो है, मैं समझता हूँ कि ये एजेंसियों का किरदार है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई रिट नहीं कायम। अगर किसी कोई आदमी मतलूब है तो थ्रू प्रॉपर चैनल वो गिरफ्तार करे। एक पुलिस का सिपाही आके हमारे बंदे को उठा के ले जाता है। मैं समझता हूँ कि ये क्या सुकून सिर्फी की बात है। तो बात लंबी हो गई। हमारे 2-3 साथी रावलाकोट मरकजी अहदेदार भी आ रहे थे, वो लेट हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि 20 तारीख को राजा मनीर साहब की पेशी है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने बच्चे को आप किए हुए थे, वो डॉक्यूमेंट सारे वहाँ पे सबूत के तौर पे वो पेश करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो राह हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो ये आज़ाद कश्मीर के अफजल के अंदर हमारी तंजीमें मौजूद हैं, पूरा सेटअप हमारा मौजूद है। तो उसके खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करेंगे। यानी उस दिन जो राजा मनीर साहब गिरफ्तार हुए, ह्यूमन राइट्स कमीशन के थ्रू इंताब संधि के हवाले से अगले महीने हम यहाँ बाग के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है पाकिस्तान के ज़रिए में एक वर्कशॉप का हम करवाना चाहते थे। उस हवाले से वो मीटिंग करने आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनको यहाँ से उठा के ले जाया गया। मैं समझता हूँ मेरे तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये सब दहशतगर्दी, दहशतगर्दी। मैं ये किसी से मुझे कोई तवक्को नहीं, सिविल गवर्नमेंट से कोई हमें किसी, न पाकिस्तान से न आज़ाद कश्मीर, किसी गवर्नमेंट से हमें तवक्को नहीं है। मैं चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, जो मिसिंग पर्सन के हवाले से वो काम कर रहे थे और हमारे बेशुमार ह्यूमन राइट्स के हवाले मिसिंग पर्सन के हवाले से केस है, उनसे अपील करता हूँ एजेंसी अगर कोई सच लिख दें, कोई हकायक लिख दें, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि वो राजा मनीर जो है, वो जो गरीबों की हुकूक की बात करता था, जो मिसिंग पर्सन के हवाले से बात करता था, जो ख्वातीन के हुकूक के हवाले से बात करता था, जो मुख्तलिफ ज्यादतियों के हवाले से हमारे जो है थाना कल्चर के हवाले से, महकमा माल के हवाले से, इंतजामिया की नायली की वजह से बहुत सारे ऐसे मामला थे जो हम जो है रोजाना की बुनियादों पर डिस्कशन करते थे, जो इंतजामिया से बात करते थे, उसको सजा दी जा रही है। अगर वो राह नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर, न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बाहर भी इंशाल्लाह हमारी तंजीमें हर जगह मौजूद है, इंसानी हुकूक की तंजीमें हर जगह मौजूद है। तो इंशाल्लाह हम भरपूर हम अपनी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। हक और सच की बात करने वाले दोस्तों साथियों कहता हूँ कि बहुत कम लोग हुआ करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जिनको मैंने दावत दी, वो कहते जी हमें डर लगता है, हमें एजेंसी से डर लगता है। और जिस तरह हमारे एक साथी ने कहा, ये कोई आसमानी मखलूक है? हमें मुसलमान है, हमारा ईमान है कि हमने एक दिन मरना है, हमने जाना है इस दुनिया से। अमीर ने भी जाना है, गरीब ने भी जाना है, खरपेज ने भी जाना है, कब्र के अंदर हमने जाना है। वो 4-6 फुट जो कब्र में डरने खुदा की जात से है, हमें किसी से डर करना है। मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये शहादत की मौत होगी। इसलिए मैं आप तो तमाम जो हमारे साथी, जो हमारे ह्यूमन राइट्स, उनसे अपना कौम प्रेस तो हमारे साथी थे, मैं सबसे ज़्यादा अमजद गद्दारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो मैं आप तमाम भाइयों का, तमाम साथियों का एक एक करके सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आइंदा जो भी राय अमल होगा तो हमारे साथ तावन कीजिए। ये हक की बात है, ये सच की बात है, ये इंसाफ की बात है और ये इंसाफ की बोलबाला जो इंशाल्लाह हम करेंगे। हम किसी से किसी चीज़ से घबराने वाले नहीं है और ना हम परेशान होने वाले हैं। हम सिर्फ खुदा की ज़ात से, हमारा मशहूर यही है, हमारे नज़दीक कोई बरादरी नहीं है, कोई कबीला नहीं है, कोई इलाका नहीं है, कोई ज़ात और पात नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और अपने आइन और मंशूर के अंदर जो इंसानी हुकूक के अंदर जो हमें हासिल है उसके मुताबिक हम काम करते हैं। तो हमें आप लोगों को जो मैं समझता हूँ जिनके अंदर ईमान की, गैरत की और आज़ाद कश्मीर और कश्मीरी होने का कोई जज्बा मौजूद है, उनको जो है वो हमारा साथ देना चाहिए। और ये न कि हमारा साथ दे बल्कि इंसाफ का साथ दे, हक और सच का साथ दे। मैं अपने साफी भाइयों का, उनसे भी ये कहूँगा कि आप हमारी इस बात को आवाज़ बाला तक पहुँचाएं, प्रेस के अंदर दें, फी सबिलिल्लाह दें। हमारे पास कोई पैसा नहीं है कि हम ये कहें जी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये आप हमारे साथ तावन करें ताकि हम हमारी बात जो है वो आला खाम तक पहुँचे। मैं बाग की इंतजामिया से ये करता हूँ, मैं बाग के DC और SP से ये गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह आपने हमारा पता उनके हवाले किया है, वो उसके वापसी के जो है वो इंतजाम वो करें। वरना ये होगा कि हालात जो अगर खराब हो गए पूरे आज़ाद की फिलहाल तो हम बाग के अंदर हम स्टेप ले रहे हैं, तो फुटबॉल की जिम्मेदार बाग के SP होगा, बाकी इंतजामिया होगी। मैं बात लंबी कर गया हूँ, तो किसी को अगर कोई बात ना करूँ नागवार गुजरी हो तो मैं सबसे माजूर चाहूँगा। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। बहुत अच्छा। हमें जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सैयद तारिक शंकरदेजी, यूसुफ कश्मीरी साहब, राजा यासीन साहब, राजा निशात साहब, इसी तरह नेशनल अवामी पार्टी के नासिर आकाश साहब, इसी तरह से हमारे एडवोकेट जो है वो इब्रार आज़ाद साहब, इसी तरह से जो है वो राजा अहमद मंजूर साहब, इन तमाम लोगों का और इसके साथ साथ जो साफ़ी हज़रात हैं, इसी तरह से ह्यूमन राइट्स मूवमेंट
ख़वातीन विंग की तरफ से और ख़ुसूसन जो है वो हमारे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के जितने भी जो है वो कारकुनान हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए कि हमारी जो जदोजहद है वो इंसानी हुकूक़ के हवाले से है और इंसानी हुकूक़ के एक ऐसे जो है वो बंदे को आज जो है वो गिरफ़्तार किया गया है कि जो इंसानी हुकूक़ के हवाले से सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इसी जो इंसानी हुकूक़ के हवाले से जदोजहद करने के हवाले से सज़ा दी गई है, वरना कोई अंधा भी कोई अकल से जो पैदल ना हो तो वो भी ये समझता है कि किसी बेटे के जुर्म की सज़ा